Assalamu alaikum students of class 8. Welcome to the next lecture of SST. Students, in the last lecture related to your history chapter number 11, the concept of the two-nation state, we discussed the ideology of Pakistan. That I told you about the definition of the ideology. That what is ideology? Ideology is the name given to a set of ideas, ideals, beliefs that are particular to a group of people and that also guide them. And then we learned about the constitution, that what is the constitution, and we discussed that how a constitution of a country or the set of laws can be set up or formed. Then we discussed that what were the points, the basic common ideology on the basis of which the Muslim political personalities demanded a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. Indo-Pak subcontinent में Muslims के लिए separate homeland की demand जिस basis पे, जिस ideology की basis पे की गई थी, what were that points? So today we are going to complete the topic, the remaining topic on page number 93. So open up your books. You have to note down and jot down some points. All right, students, as you know and as you remember that we've also learned in class 7 that there was a time in about 1916 and around about 1920 when Qaid-e-Azam was holding positions in both Congress as well as Muslim League. And Qaid-e-Azam arranged an agreement that was also known as the Lucknow Pact, जिसमें Qaid-e-Azam decided that the Muslims and Muslim League and the Congress must come to a point where they must agree that both the Hindus and Muslims will have separate representation in the Legislative Council. Legally, Muslims and Hindus would both have separate representation assemblies में और laws में, law making में, दोनों की जो है ना equal positions होनी चाहिए. But the Lucknow Pact failed. गांधी ने उनको disagree किया इन सारे points को, और गांधी ने कहा कि when the British leave India, Hindus being in the majority will have all the rights to make laws, to rule, to guide Muslims since the Muslims were in minority. So गांधी साहब की यही एक thinking थी, and in 1920 he came into power in Congress, president बन गए. इधर कायद-ए-आज़म president थे मुस्लिम लीग में. दोनों के clashes start हो गए. कायद-ए-आज़म बहुत disappoint हुए. communal rights start हो गए थे. Do you remember कि कितने फसाद start हो गए थे? Muslims का slaughtering, open slaughtering start हो गई थी इंडिया में, और ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे गांधी साहब, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी. उसके बाद कायद-ए-आज़म इतने डिसअपॉइंट हो गए थे दैट ही रिजाइंड बोथ फ्रॉम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. दोनों को छोड़ के, पॉलिटिक्स को छोड़ के कायद-ए-आज़म जो है ना तंग आके और बिल्कुल सेपरेट हो गए थे हिंदू इंडियन पॉलिटिक्स से. बहुत डिसहार्ट हो गए थे. और उसके बाद कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स अपने दिए थे 1929 में. इफ़ यू कुड रिमेंबर कि 1929 में कायद-ए-आज़म ने काफ़ी थोड़ा सा रेस्ट के बाद 1920 एंड 21 के बाद एक अचानक जो है ना 29 में कायद-ए-आज़म वापस आए थे पॉलिटिक्स में, और अपने 14 पॉइंट्स उन्होंने प्रेजेंट किए थे. So today we are going to start reading something about the 14 points, the basic and important 14 points. हमने जो 7th क्लास में रीड किए थे वो 14 points जो थे उनमें से उन्होंने आपको वो वाले points दिए थे जिनकी बेसिस पे पाकिस्तान की क्रिएशन और पाकिस्तान की बॉर्डर्स उन्होंने डिस्क्राइब करने को कहा था कि जी फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए जिसमें मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन हो, और सिंध और NWFP के लिए भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए. इस तरह के भी 14 पॉइंट्स से कहा थे. बट जो आइडियोलॉजी से रिलेटेड, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और मुस्लिम स्टेट जो बनने वाली थी उसकी आइडियोलॉजी के, उसके बेसिकली उसके अंदर क्या चीज़ चाहते थे कायद-ए-आज़म के, जिसकी बेस पे सारे मुसलमान एग्री कर रहे थे कि हाँ हम ऐसी ही स्टेट चाहते हैं, हम ऐसी ही ज़िंदगी चाहते हैं, और हम ऐसी ही लिबरलिज्म और आज़ादी चाहते हैं जिसकी बेस पे हम अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें. तो वो आइडियोलॉजी की जो बेसिस थी ना वो 14 पॉइंट्स में से इन्होंने आज 4 पॉइंट्स आपको इसमें दिए. तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. The 14 points presented by Mr. Jinnah, which were the basis
of all future negotiations with Congress. इन्होंने कहा कि ये जो 14 पॉइंट्स थे ना, इनकी बेसिस पे सारी कांग्रेस के साथ हमारी बात चलेगी, ठीक है ना. Also embodied the basic view of the Muslims. Later events confirmed the view of Allama Iqbal, Quaid-e-Azam and other prominent leaders that only solution to the problem was an independent country for the Muslims of the subcontinent. उन्होंने कहा कि सिर्फ जो मुसलमानों के लिए जो सोल्यूशन है ना, वो यही है कि उनकी एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट बना दी जाए. It was agreed by all and stated by Quaid-e-Azam that मुस्लिम लीग ने ये सारे पॉइंट्स के साथ एग्री किया था. जितने भी हमारे स्कॉलर्स थे मुस्लिम लीग के, सब ने 100% एग्री किया था कि ये पॉइंट्स Quaid-e-Azam के बिल्कुल वैलिड हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज, आपने इन पॉइंट्स के ऊपर ना छोटी छोटी सी हेडिंग्स लिख लेनी है, ठीक है, जो मैं भी आपको बताऊंगी. द फर्स्ट हेडिंग शुड बी जस्टिस. जस्टिस की बेस, जस्टिस होता है इंसाफ. पाकिस्तान शुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर डीलिंग विद ऑल. कायद-ए-आज़म सिर्फ ये नहीं कहते थे कि सिर्फ मुसलमान आए पाकिस्तान में, जो यहाँ से हिंदूज और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए या उनको इंडिया में माइग्रेट करने पे मजबूर किया जाए. ऐसा नहीं था बिल्कुल उनका ओपिनियन. वो ये कहते थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जिनकी बाउंड्री, जो पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर आएंगे, उनमें जितने लोग भी रहेंगे उन सब के लिए जस्टिस का फर्स्ट प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है, सबके साथ इंसाफ होगा. द सेकेंड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इसकी हेडिंग आप लिख लीजिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. पाकिस्तान वॉज indeed a homeland not only for the majority, the Muslims, but also the minorities. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि कायद-ए-आज़म ये कहते थे कि जो यहाँ पे माइनॉरिटीज भी, सिख्स होंगे, हिंदूज होंगे, पारसीज होंगे, कोई और भी रिलीजन के लोग होंगे जो यहाँ रहते होंगे, उन सब के लिए पाकिस्तान एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन उनको मिलेगी और एक फ्री होमलैंड होगा. उनको बिल्कुल किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी अपने मजहब को फॉलो करने में. ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट है ऑल पीपल वर इक्वल बिफोर लॉ. तो ये इक्वालिटी ऑफ लॉ है. इक्वालिटी ऑफ लॉ, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, उसमें ये नहीं होगा कि मुसलमानों को कोई रिलीफ मिलेंगे और हिंदुओं को नहीं मिलेंगे. सबके लिए इक्वल लॉ होगा. The fourth point is all people were equal citizens of a sovereign state. Sovereign means independent, ठीक है, independent state. Equal citizens, ठीक है, तो सारे बराबर equal rights of citizenship है ये, कि सब बराबर के यहाँ पर citizenship के rights होंगे सबके. सारे पाकिस्तानी होंगे और जिसके पास पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड होगा उसके वही राइट्स होंगे जो किसी दूसरे के होंगे. रिलीजन की बेसिस पे राइट्स डिफरेंट नहीं होंगे. ये कायद-ए-आज़म की आइडियोलॉजी थी जिसको मुस्लिम लीग ने सब ने एग्री किया था. ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में भी आएंगे. ओके, now come to the next paragraph. The ideology of Pakistan is also expressed in the objectives resolution passed in 1949 March 1949, leading to the framing of the first constitution by Constituent Assembly 1952 to 54. फर्स्ट फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ था वो 1952 से 54 तक में हुआ था. और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था, वो 1956 में आया था और इम्प्लीमेंट हुआ था. वो भी इन्हीं सारे पॉइंट्स की बेसिस पर फ्रेम किया गया था. However, it must be admitted that this was not an easy task as there were strong differences of opinion. आपको पता है कायद-ए-आज़म की भी कितनी अर्ली डेथ हो गई थी. उसके बाद अल्लामा इकबाल की तो पहले ही हो चुकी थी पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले. उसके बाद 1951 में चौधरी रहमत अली, लियाकत अली खान, इन सब की भी डेथ्स हो गई थी. तो जो बेसिक, जो स्ट्रॉन्ग जो बेस थी पाकिस्तान की, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनकी बहुत अर्ली डेथ्स की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे. Although there have been changes in the constitution since then, 1962 Ayub Khan, 1973 Zulfikar Ali Bhutto, the basic ideology underlying the creation of Pakistan has continued to be the guiding principle. जो बेसिक आइडियोलॉजी थी, ये 4 पॉइंट्स जो बेसिक आइडियोलॉजी के कायद-ए-आज़म ने प्रेजेंट किए थे, ये कंटिन्यू रहे
बेस बनने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त जो पाकिस्तान में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया 1956 का था जो इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद 1962 में यूब खान ने कुछ ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस तो आपको पता है आती रहती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, असेंबलीज में पास होते हैं बिल्स और फिर उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाते हैं। 1962 में थोड़ा सा अमेंड हुआ था, उसके बाद कुछ चेंजेस 1973 में उस कॉन्स्टिट्यूशन में आई। इस वक्त जो इम्प्लीमेंट हुआ बना एट प्रेजेंट पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ओके, ये साइड पे जो आपके एम्प्टी एरिया होता है ना, थोड़ा सा प्लेन पेपर होता है, इसके ऊपर अपने पॉइंट्स को नोट करते रहा करें, ठीक है। ओके जी, टुडे योर होम असाइनमेंट इज question number 4. Explain what is meant by ideology. What are the main features of Pakistan's ideology? अब इसके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय आइडियोलॉजी। तो ये मैंने आपको डेफिनेशंस भी दी थी और मैंने आज भी इसीलिए इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी निकाली हुई है आपके, ताकि लेक्चर का पार्ट बन जाए। आप आइडियोलॉजी की डेफिनेशन को लिटरेरी मीनिंग में, उसके डिक्शनरी मीनिंग में भी ले सकते हैं। द वर्ड आइडियोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स आइडियो एंड लोगोस एंड इट मीन्स द साइंस or the study of ideas. Okay, this is the meaning of ideology, and the basic definition of ideology is on your page number 91. That ideology is a name given to a set of ideas, ideals and beliefs that are particular to a group of people and also guide them. ओके, ये डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी और जो वर्ड आइडियोलॉजी का मीनिंग है वो आपने, ये दोनों चीज़ें इसमें व्हाट इज मेंट बाय आइडियोलॉजी में आना चाहिए। ओके, देन कम टू द सेकंड पार्ट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। अब हमने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के जो 4 मेन फीचर्स पढ़े हैं, लॉ, जस्टिस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एंड इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, इनको सबको आपने मार्कर से हेडिंग दे के 1 2 3 4 और आगे सेंटेंसेस का कंप्लीट लिखना है जो यहाँ पर आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 93 पर। ओके, ये वर्ड्स हैं कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स के एज इट इज पॉइंट्स हैं, तो इनको आप ज़्यादा चेंजेस ना लेकर आइएगा, सिंपल हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, इनको इसी तरह अपने लिखना भी है और लर्न भी करना है। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।